جی ہاں، وقت آ گیا ہے آج کی انسپائرنگ ویمن سے آپ کی ملاقات کروانے کا، اور اگر ان کی بات کی جائے ان کی جو پروفیشنل لائف جرنی ہے دیٹ از ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ انہوں نے ماسٹرز کیا انگلش میں اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ پڑھانا شروع کریں، اور جب پڑھانے کے لیے انہوں نے مختلف جگہوں پہ اپلائی کیا تو انہوں نے نیوی جوائن کر لی. نیوی میں 5 سال انہوں نے سرو کیا، وہاں اس کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ منسلک رہیں، اور پھر ایونچولی جو ہے انہوں نے اپنا ایک بزنس شروع کیا شادی کے بعد، اور بزنس ان کا جو تھا وہ کپڑوں سے ریلیٹڈ تھا. شی از اے فیشن ڈیزائنر اور بڑا اچھا کاروبار کر رہی بالکل، بہت بہترین کام کر رہی ہیں، بہت بہترین کاروبار کر رہی ہیں. مجھے پرسنلی ان کے ڈیزائنز بہت زیادہ پسند ہیں. میں خود بھی بہت شوق سے ان کے ڈیزائنز پہنتی ہوں. ہم بات کر رہے ہیں سائرہ رضوان کی آف سائراز اٹیلیے، جن کے 2 جو ہے آؤٹ لیٹس، ایک لاہور میں ہے اور ایک اسلام آباد میں ہے. اینڈ شی از ڈوئنگ اے گریٹ جاب. سائرہ، ویلکم ٹو دا مارننگ شو. تھینک یو سو مچ. تو سائرہ واقعی بڑا انٹرسٹنگ، مطلب یہ کچھ پلان تھا کہ اس طرح چلنا ہے یا یہ خود بخود ہو رہا تھا سب کچھ؟ بالکل بھی پلان نہیں تھا. آئی ڈونٹ نو کہ کیسے ہوتا گیا. اب ہم سوچتے ہیں کہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ فیشن ڈیزائنر ہی بننا ہے یا بزنس چلانا ہے. اس دفعہ آئی نیور تھاٹ آف دس. انٹرسٹنگلی آپ نے فیشن ڈیزائننگ پڑھا نہیں، بالکل بھی نہیں. تو مطلب شروع میں یہی تھا کہ بس انگلش پڑھنی ہے، پڑھانا ہے بچوں کا، ایجوکیشنسٹ بننا ہے. ایگزیکٹلی. آئی واز انٹو یونیورسٹی ٹیچنگ. میں MBA اسٹوڈنٹس کو بزنس کمیونیکیشن، PR ریلیشنز، رپورٹ رائٹنگ وغیرہ یہ سب میں ماسٹرس لیول پہ پڑھاتی رہی ہوں آفٹر مائی ماسٹرس. تو پھر اس کے بعد یہی ہوا کہ وین آئی گاٹ میرڈ ٹو اے مین ہو از ان آرمی، سو آئی ہیڈ ٹو شفٹ مائی سٹیز. کراچی سے ہم لوگ لاہور آ گئے. لاہور میں بھی آئی یوز ٹو ٹیچ ان ڈفرینٹ یونیورسٹیز. پھر بس ایسے ہی ایونچولی کر کے جو ہے نیوی میں ایجوکیشن کی آئی تھی. نیوی میں بھی آپ شادی کے بعد آپ نے جوائن کی تھی؟ جی، میں نے شادی کے بعد جوائن کیا تھا. اینڈ مائی سن واز آئی تھنک 2 years old ایٹ دیٹ ٹائم جب میں نے ٹریننگ کی. واو، دیٹ از سو انسپریشنل. تو کیسے یہ نیوی میں کیسے آپ اچانک چلی گئیں؟ نیوی میں اس کی ویکینسیز آئی ہوئی تھیں، اور بیکاز میری فیملی بیک گراؤنڈ زیادہ تر آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے لوگ ہیں فیملی میں، سب انکلز. اور بٹ آئی واز دا فرسٹ ون ایز اے لیڈی ٹو جوائن. تو ان دنوں میں ویکینسیز آئی ہوئی تھیں فار دا ایجوکیشن برانچ، اینڈ بیکاز آئی ہیڈ ڈن ماسٹرز ان لنگوسٹکس تو پھر میں نے اپلائی کر دیا اس کے لیے. اچھا، مجھے جو آپ کی بات اچھی لگی ہے کہ لائف از ایکچولی فل آف سرپرائزز. آپ کو جو سرپرائز ملتا گیا آپ اسے ایکسیپٹ کرتی رہی، اینڈ دیٹس ہاؤ یو میک یور جرنی این انسپائرنگ جرنی. ایگزیکٹلی. تو پھر یہ ایک دم سے فیشن ڈیزائننگ کا خیال کیسے آ گیا کہ کپڑے بنائے جائیں، اور اتنا سکسیزفل آپ نے ماشاءاللہ بزنس کس طرح کھڑا کر لیا؟ اچھا، یہ اس میں آئی او مائی سکسیز ٹو نیوی بیکاز انہوں نے مجھے بہت زیادہ ایڈمنسٹریشن وغیرہ سکھایا. آڈٹ کرنا، ایڈمنسٹریشن، ہیومن ریسورس کے ساتھ کام کرنا، یہ سب میں نے وہاں سے سیکھا. لیکن آپ اگر کہتے ہیں وائی آئی لیفٹ نیوی بیکاز آف مائی فیملی. کچھ کنسٹرینٹس تھے فیملی کی وجہ سے، لیکن آئی واز آف دا کائنڈ کہ میں گھر نہیں بیٹھ سکتی تھی. آئی ہیڈ ٹو ڈو سم تھنگ فار مائی سیلف، فار دا نیشن آلسو. سو میں نے I was into like fashion کہ آپ بہت زیادہ خود فیملی فرینڈس میں ذرا فیمس ہو جاتے ہیں بیکاز آف یور ڈریسنگ اینڈ ایوری تھنگ. تو دے لکڈ اپ ٹو می کہ مجھے ہمیں بھی ایسا بنا کر دیں، یہ سب فیشن چوائسیز آپ کی بہتر ہیں. تو دین آئی اسٹارٹیڈ ود دس کہ میں اوکے وین آئی ہیو لیفٹ نیوی تو آئی کی ناٹ سٹ ایٹ ہوم، آئی وڈ ڈو سم تھنگ. بچے چھوٹے ہیں، ان کو بھی میں لک آفٹر کروں گی اور یہ میں کام بھی کروں گی. ویری نائس. تو پھر کیسے آغاز کیا، شروع کیسے ہوا یہ فیشن کا جرنی؟ جی میں نے اسلام آباد سے اسٹارٹ کیا تھا، اور اس وقت ڈیفینیٹلی وین آئی اسٹارٹیڈ آئی ہیڈ اونلی ون ٹیلر. جو میں نے ایک گھر میں ایک ٹیلر رکھا تھا، اور آئی یوز ٹو گو اینڈ سورس فار دا فیبرک مائی سیلف. دیکھ کر آتی تھی، چوز کر کے فیبرک لاتی تھی، ڈیزائنس وغیرہ اس کو دیتی تھی ٹیلر کو. تو اور میرا آئی اسٹارٹیڈ ود اسٹاکنگ ایٹ ڈفرینٹ ملٹی ڈیزائنر اسٹورز ان کراچی، اسلام آباد، لاہور سائملٹینیسلی. تو پھر وہ ماشاء اللہ سے لوگوں کی اپریسیشن سے اور سپورٹ سے بڑھتا گیا میرا جو کام تھا. اور اسی طرح ورک
वर्क फोर्स मेरी ज़्यादा डबल होती गई कि आपने टेलर के बाद 2 टेलर रखे, 4 टेलर रखे, फिर उसके बाद अड्डे वाले, मशीन वर्क के सारे सब लोग जो हैं, फिर नाउ आई हैव अ फैक्ट्री ऑफ अराउंड 70 पीपल, दे वर्क फॉर मी। माशाल्लाह फैमिली तो सपोर्टिव थी, रिजवान साहब भी बहुत सपोर्टिव थे, लेकिन फिर भी इस जर्नी में बहुत सी मुश्किलात आई होंगी, बड़ी हर्डल्स आई होंगी। अभी तो आप बड़ी आसानी से बता रही हैं, वो भी जरा हमारे नाज़रीन से शेयर। हाँ बिल्कुल, अभी बोलने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन करना जब आप व्हेन यू आर गोइंग थ्रू इट तो आपको पता चलता है कि ये क्या जर्नी है। तो मेरे हस्बैंड की जॉब की नेचर ऐसी थी कि ही हैज़ टू गो टू डिफरेंट स्मॉल स्टेशंस आल्सो, लाइक वारान भी गए और डिफरेंट स्टेशंस पे, तो फिर देन आई हैड टू जी ही इज इन आर्मी में थे और आप अच्छा वो आर्मी में हैं और आप नेवी में हैं। जी बिल्कुल सही। हाँ, तो फिर वो जब कहीं भी आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, देन आई हैव टू लुक माई फैमिलीज यू नो एजुकेशन, पूरा घर का जो भी हिसाब किताब होता है, सिस्टम होता है, वो आपको खुद देखना पड़ता है अलॉन्ग विद योर बिजनेस। और अभी तो माशाल्लाह से 2 आउटलेट्स हैं, तो दे आर इन ऑपरेशन स्टेट ऑल द टाइम। मॉल में जब आपके आउटलेट होते हैं तो वो देखना होता है, ह्यूमन रिसोर्सिंग होती है, बजटिंग होती है, ऑडिट होता है। सो इट्स नॉट जस्ट डिज़ाइनिंग नाउ, इट्स अ होल लॉट ऑफ यू नो ऑल एक्टिविटीज़। ये सब चीज़ें आप खुद कर रही हैं, खुद देखती हैं? जी ऑब्वियसली आई हैव माई असिस्टेंट्स, मैनेजर हैं, परचेजर्स हैं, बाकी अब बिकॉज विद टाइम मैं यंगर जनरेशन को भी यही कहती हूँ कि व्हेन दे कम टू मी फॉर इंटर्नशिप्स, तो वो कहते हैं कि हम 1 साल में ये काम कर लें। सो इट टुक मी 10 years टू कम एंड सिट हियर एंड टॉक अबाउट इट। अच्छा, बिना शुबा फोर्सेस की वजह से डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आया, बिल्कुल, जिनसे आपने चीज़ें मैनेज की। लेकिन बहुत सी ख़वातीन हैं जो घर में बैठी हैं, कुछ करना चाहती हैं, बट असल में होता ही है कि हम लोग अपने कंफर्ट जोन से भी नहीं बाहर आ रहे होते। तो कितने घंटे सोती थी, किस तरीके से आपने कितनी मेहनत की इनिशियली एक बिजनेस को जो है स्टेबल करने में, फैमिली को, बच्चों को किस तरह टाइम देती थी, ये जरा चीज़ें बताइएगा। अच्छा, मेरे आई हैव 2 kids, अभी एक बेटा O levels में है और बेटी क्लास 5 में है, और माशाल्लाह वो अच्छे स्टडीज़ कर रहे हैं। लेकिन जब शुरू का टाइम था, काफ़ी हार्ड टाइम भी गुजारा है व्हेन हस्बैंड वेंट आउट ऑफ द कंट्री और डिफरेंट स्टेशंस पे, और फैमिली मेरी कराची में होती है, आई मीन इस्लामाबाद, तो अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ता था। तो ऑब्वियसली आपको फिर सोने का टाइम कम मिलता है, सोने में भी आप यू आर ड्रीमिंग ऑफ द एंड प्लानिंग ऑफ द अदर डे वर्क के, हाँ नेक्स्ट डे क्या करना है आपने, क्या काम देना है। और जब हम छोटे स्केल से शुरू करते हैं तो हमारे बहुत ज़्यादा लिमिटेड एक्सपेंसेस भी होते हैं, हम वी कैन नॉट यू नो ओवर रेट दैम, और हम ज़्यादा नहीं जा सकते। तो कुछ बहुत से लोगों से काम करवाना, जहन में पहले से सोचना कि वो फ्री ना हो जाए, उनको आपने काम ला कर देना है, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें होती है जो वर्क आपको खुद करना पड़ता है। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया कि पहले एजुकेशन, फिर नेवी, फिर बिजनेस, व्हिच वाज योर फेवरेट? मज़ा सबसे ज़्यादा किस में आता है? इसमें आता है कि पहले पढ़ाने में आता था? मुझे तो पढ़ाने में बहुत मज़ा आता था। अच्छा। हाँ, पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, बिकॉज आई वॉज इंटरेक्टिंग विद द यंग जनरेशन। वो उसी वक्त फ़ौरन फीडबैक मिल जाता था, और यू नो वो एक जो एक इंटरचेंज ऑफ आइडियाज एंड ये सब होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि पढ़ाना। इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रूमिंग कि जिसमें आप सीख भी रहे होते हैं, सिखा भी रहे होते हैं, जब आप ज़्यादा यंगस्टर्स को पढ़ा रहे होते हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज। बादशाहत है अपनी। अच्छा, तो ये बताइएगा कि ये जो अब नए नए ट्रेंड्स आते हैं, एक तो अपने थोड़े बिजनेस के हवाले से बताइएगा, किस तरीके का फैशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाती हैं? इज़ इट वेस्टर्न या हमारा ईस्टर्न आपके कपड़े होते हैं ज़्यादातर? अच्छा, एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड आई हैड ओनली दिस इन माइंड कि हमारे जो या तो डिज़ाइनर्स थे वो बहुत हाई एंड डिज़ाइनर्स थे, ठीक है, दे वर बियॉन्ड द लिमिट ऑफ अ कॉमन मैन ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। अभी आजकल अब देखें तो मॉल्स और हाई स्ट्रीट फैशन इतना ज़्यादा आ गया, पहले नहीं था बिल्कुल भी। पहले या हाई एंड डिज़ाइनर्स थे या बिल्कुल लोकल मार्केट्स थी, ठीक है। तो व्हेन आई हैड टू बाय समथिंग फॉर माई सेल्फ, तो आई कुड नॉट अफोर्ड दैट वेरी यू नो इतनी ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, तो फिर आई हैड टू गो टू माई टेलर्स एंड मेक फॉर माई सेल्फ। तो फिर इसी तरह करते करते ये हुआ कि यू नो आई शुड मेक थिंग्स फॉर माई फ्रेंड्स, फॉर माई फैमिली, फॉर people like me who can wear fashion as well. उन्हें ये बहुत ज़्यादा, they should not cost a heart,
ऑर्गन्स जो होते हैं किडनी और हार्ट वो ना कॉस्ट करनी पड़े एक अच्छे डिज़ाइन को पहनने के लिए। ऐसे ही है। सो माई डिज़ाइंस आर वेरी रीजनेबल प्राइसिंग, हम उनकी कॉस्ट जो है वो डाउन करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, बट नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी। कितना मुश्किल होता है ये ट्रेंड्स को फॉलो करना, और क्या आप इसके लिए फिर किस तरीके से वर्कआउट करते हैं कि ये नए डिज़ाइन हमें इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए? जी, दिस सिस्टम इज़ ऑलवेज प्रोएक्टिव। आपको हमेशा से एक सीज़न अहेड के लिए सोचना होता है। व्हेन लाइक विंटर्स आर कमिंग सो यू हैव टू परचेज थिंग्स एंड डिज़ाइंस सीज़न अहेड। आप उसी वक्त नहीं कर सकते, तो हम फोरसी करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली काम ही अब ये है हमारा कि वी हैव टू फोरसी द ट्रेंड्स, वी हैव टू फोरसी द फैब्रिक एंड ऑल्सो द कट्स के जो नेक्स्ट मंथ्स में चलेंगे, तो वो हमें इंट्रोड्यूस करवाने होते हैं मार्केट में। अच्छा, यू हैव अ वेरी इंस्पायरिंग जर्नी। पहले आपने एजुकेशन से स्टार्ट किया, फिर आपने नेवी में सर्व किया, फिर आप एक बिजनेस की तरफ आए एंड यूर सक्सेसफुली माशाल्लाह रनिंग अ बिजनेस। मुझे ये बताएं कि हमारी जो यंग जनरेशन आपको देख रही है, हमारी जो खवातीन आपको देख रही हैं जो कि एक्चुअली कुछ करना चाहती हैं डिफरेंट, उनको आप क्या बेसिक टिप्स देंगी कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली कैसे लेकर आएँ? अच्छा, एक्चुअली आजकल तो आज जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है अगर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि वो आपको बहुत कम से कम इन्वेस्टमेंट है आपकी। यू कैन स्टार्ट विद द पेज और एनीथिंग, वट एवर क्रिएटिव थिंग यू आर मेकिंग, आप उसको अच्छे से मार्केट करें, उसकी अच्छी सी फोटोग्राफी करके, एंड यू कीप द मार्जिन वेरी लो। इनिशियली ये होता है कि लोग कहते हैं कि अच्छा मैं इतना बड़ा डिज़ाइनर बन गया हूँ तो मेरा जो है वो पीस जो है इट शुड बी बियॉन्ड द लिमिट ऑफ अ कॉमन मैन। ऐसे नहीं होना चाहिए। यू हैव टू सेल इन बल्क, ठीक है? आप ज़्यादा क्वांटिटी बेचें, कीप योर यू नो मार्जिन्स, या मार्जिन्स वेरी लो, प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं रखें। जब ऑब्वियसली व्हेन यू अटेन सम स्टैंडर्ड ऑफ तो फिर आप जाके ऑब्वियसली प्राइसेस हमारी तमाम खवातीन जो कि सायरा से इंस्पायर हैं और वो चाहती हैं कुछ भी करना, अपनी किसी भी क्रिएटिविटी को, किसी भी स्किल को एक प्रोफेशन बनाना, तो वो ये ज़रूर टिप्स फॉलो करें कि वो पब्लिक के लिए जो है, आम पब्लिक के लिए चीज़ें बनाएं, ना कि बहुत एक स्पेसिफिक क्लास के लिए। अच्छा, सारा ये तो होगी ना आपके काम से रिलेटेड बात। ये बताइएगा, क्योंकि आपके हस्बैंड भी, उनकी पोस्टिंग होती रहती है मुख्तलिफ जगहों पर, तो ट्रैवलिंग का शौक़ है, ख़ुद भी पाकिस्तान घूमी फिरी हैं? हाँ जी, बिल्कुल, ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और हम हर ईयर आउट ऑफ कंट्री भी माशाल्लाह से जाते हैं। अभी टर्की गई थी, मलेशिया, पेरिस। पाकिस्तान में कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद है? पाकिस्तान में क्या, कहाँ घूमना फिरना पसंद? पाकिस्तान में हम लोग नॉर्दर्न एरियाज़ सारे गए हुए हैं। इवन बल्कि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग कहीं स्टोर में थी तो हम वहाँ पर भी गए थे, और मेरी बेटी की बर्थडे थी, आई थिंक सेकंड बर्थडे, हमने वो वहाँ पे जाके मनाई थी जी, स्टोर। और वहाँ पे गिलगित से क्रॉस एरिया है, बहुत ज़्यादा वो आई थिंक K2 वगैरह का बेस कैंप भी वहाँ पर है। अच्छा। तो वहाँ हम और गए भी दिसंबर में थे, तो मैंने माशाल्लाह से सारे नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान के भी देखे हैं। दे आर वेरी ब्यूटीफुल। और कभी आप इस साइड पे भी आई, साउथ की साइड पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे डेजर्ट हैं बड़े खूबसूरत। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों को भी एक्सप्लोर किया? पंजाब में कुछ एरियाज में गई हूँ, पंजाब नहीं, नॉर्दर्न एरियाज। तो ट्रैवल जब करती हैं, इंस्पायर होती हैं किसी चीज़ से, क्योंकि हमारे डिफरेंट कल्चर्स हैं, अब मुख्तलिफ पहनावे हैं, और जब हम फ्यूजन करते हैं तो फोक और इंटरनेशनल चीज़ों का फ्यूजन जो है वो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है हमारे। इसी तरह कश्मीर की कढ़ाई बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड में भी है। उसके अलावा सिंधी अजरक उसके प्रिंट्स हैं, रली वर्क है, और बाकी हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं वो सारे ऑब्वियसली वी टेक इंस्पिरेशंस फ्रॉम दीज कल्चर्स। वेरी नाइस। और बाकी पाकिस्तान का कल्चर इतना खूबसूरत है कि हम उससे एक्चुअली इंस्पिरेशन ले सकते हैं और उसको अपने काम में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि डेफिनेटली आपके काम में नजर भी आता है। देख लें कितना पसंद किया जाता है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में अजरक है हमारा, हैंड वर्क, एप्लीक वर्क जो है, कहीं भी मशीन्स तो अभी आ गई है ना, जो हमारा हैंड वर्क था एक्चुअली में, तो वो दैट इज एग्जैक्टली, उसका कोई मैचलेस है, कहीं भी आप देख ले नहीं मिलेगा ऐसा हाथ का काम ऐसे। अच्छा, ये बताएं सायरा कि जब आप शादी हो जाती है, शादी से पहले तो हमने देखा बहुत सी लड़कियां बहुत ज़्यादा अपनी प्रोफेशन को लेके होता है कि जी हमने काम करना है, बट इवेंचुअली आफ्टर मैरिज बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बैलेंस लाइफ में कैसे लेकर आना है, ये क्या टिप्स देंगी आप?
बैलेंस तो लाइफ में है ही बहुत ज़रूरी। आपको मॉडरेट ही रहना पड़ता है। इफ़ यू टच द एक्सट्रीम्स तो ऐसे नहीं हो सकता। मतलब यू हैव टू बैलेंस योर फैमिली अलॉन्ग विद योर करियर। इसी तरह तो समटाइम्स जब मैं देखो वो आई वॉज इनटू टीचिंग, लेकिन जब मैं शादी हो गई और माई किड्स वर वेरी यंग, बहुत ज़्यादा इन्फेंट थे, छोटे थे, तो मैं 9 to 5 जॉब नहीं कर सकती थी। तो फिर उस वक्त मैंने विजिटिंग फैकल्टी ज्वाइन कर लिया। देन आई यूज़ टू गो टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एज अ विजिटिंग फैकल्टी, जिसमें मेरा टाइम भी मैनेज होता था और मेरे फैमिली भी मैनेज होती थी। तो इसी तरह जब वो अब बड़े हुए हैं एंड नाउ आई एम एट दिस स्टेज, तो अभी मैं टाइम पे को टाइम दे रही हूँ ज़रा बिजनेस को भी, और बच्चों की स्टडीज़ भी। अभी तक मैंने कोई ट्यूटर नहीं रखा हुआ, खुद ही स्टडीज़ उनकी मैं देखती हूँ अभी तक। जी, so when your mother is educationist तो ये बड़ा फायदा हो जाता है। हर पहलू से एक इंस्पिरेशन जो है वो सामने आ आई रही है। ट्राई टू डू माई बेस्ट। अब आगे पता नहीं क्या। अच्छा ये बताइए, आप अब तो आप खुद एक इंस्पायरिंग वुमेन हैं, बहुत सी खवातीन को इंस्पायर भी करती हैं और मर्दों को भी इवन इंस्पायर करती हैं। तो ये बताइए, बट आपकी इंस्पिरेशन किसी से थी? किससे इंस्पायर हुई कि नहीं मुझे भी इस तरह का एक्टिवली काम करना है, कुछ करना है मुझे जिंदगी में? मारिया बी बहुत अच्छी लगती हैं और मारिया बी से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। क्योंकि एक तो वो पाकिस्तान की आइडेंटिटी उन्होंने भी सब जगह वो लेके गई हैं, बाहर भी उनके आउटलेट्स हैं, और उनका एक नाम एक होमली सा नेम बन गया। एवरी हाउस हैज़ देयर, ये उनके डिज़ाइंस पहन रहे हैं वो, और बिज़नेस भी उसमें बहुत ज़्यादा वो ग्रो किया है। शी ऑल्सो कम्स फ्रॉम एन आर्मी फैमिली, वो भी एक है इंस्पिरेशन, और वो बहुत अच्छा लगता है मुझे उनके। आई फॉलो हर। सही, वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताइए कि व्हेन यू आर इन सर्विसेज, आर्मी में आपके फैमिली होती है, स्पेशली हस्बैंड हैं या पेरेंट्स होते हैं, स्विच करने होते हैं आपको जगह, बहुत मुश्किल नहीं हो जाता मैनेज करना? और फिर फैमिली लाइफ को बैलेंस करना कैसे पॉसिबल होता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी वी हैव कम बैक अगेन टू लाहौर, तो मैंने अभी घर शिफ्ट करना है, और वो इट्स पेन इन द है ना, हर वक्त लगता है कि आप बस किसी चक्कर में हैं। तो आपने बहुत से शहरों में जाके स्टे भी किया होगा, तो वहाँ पे कोई स्टोरी जो आपको लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग थी, वो ज़रा बताइए। अच्छा, देखें, जब मैं एक दफ़ा हम कोहाट गए थे, कोहाट पोस्टिंग हुई शादी के बाद ही। कोहाट का कराची में रहते हुए मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था कि कोहाट भी कोई जगह होती है। और जब मैं यहाँ से लाहौर में 2 महीने के बाद ही शादी की हमारी पोस्टिंग कोहाट हो गई। अच्छा, कोहाट जब गए तो वहाँ पे पता चला जाके, द मोस्ट फेवरेट टाइम ऑफ माई लाइफ आई स्पेंड ओवर देयर। कोहाट इतना अच्छा वेदर था वहाँ पे, और छोटा सा सिटी है, लेकिन जो वहाँ के कॉमन लोकल लोग थे, वहाँ से भी जो मुझे मोहब्बत मिली। अच्छा, उस टाइम मैं टीचिंग में थी, तो मैं वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, इवन व्हेन आई गो टू बैंक, वो जो पूरा होता था, वो ये नहीं थे कि वो बैकवर्ड हैं, या वो दे ऑल्सो यूज टू लुक अप टू मी कि आप इतने काम कर रही हैं, आप पढ़ा रही हैं आप, और ये सारा। तो मुझे पूरा कोहाट ही उस वक्त भी जानता था, बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स थे, हर फील्ड में स्टूडेंट रहा होते थे वहाँ पर। तो अभी हम दोबारा कोहाट गए हैं आफ्टर 10 years ऑलमोस्ट। तो वो जो मेरे स्टूडेंट्स थे, नाउ दे हैव रीच्ड सर्टन पोजीशंस। तो अभी जब दोबारा उन्हें पता चला, बहुत अच्छा लगा मिलके। तो ये मैं बता, जो एजुकेशन के है ना, ये बहुत मजे होते हैं एजुकेशन के, कि आपको अपने स्टूडेंट्स बहुत सारी जगह मिलते थे। जैसे हमारे साथ याद है कॉथम के जब वो आए थे CEO, हम उनसे ये पूछ रहे थे कि आपको क्या हर रेस्टोरेंट में अपने जानने वाले मिल जाते? तो ही वाज टेलिंग अस कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे स्टूडेंट्स होते हैं। एग्जैक्टली। तो वो यहाँ पे क्योंकि लाहौर में एक तो स्टूडेंट्स मिलते हैं, क्योंकि आप फैशन डिजाइनर हैं, जब आप कहीं जाती हैं और आपका डिजाइन किया हो कपड़ा किसी ने पहना हो, तो कैसा महसूस होता है? कस्टमर्स भी मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो कस्टमर्स फिर डिस्काउंट मांगते हैं जब उन्होंने पहचान लिया होता है कि मैं अब डिस्काउंट लूंगी आपसे? वैसे मिलके तो नहीं मांगते, लेकिन ऑब्वियसली इंस्टा पे इंटरेक्ट करने में सब लोग काफ़ी डिस्काउंट के भी ऑफर करते हैं, फीडबैक्स बाकी भी देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और फीडबैक, क्योंकि मैं आपको बता रही थी ना, फीडबैक एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आपकी इंकरेजमेंट मिलती है। क्लास में तो उसी वक्त मिल जाती थी कि पढ़ा रहे हैं आप, कैसा पढ़ा रहे हैं। तो अब इसमें भी पहले जो था ना, जब सोशल मीडिया नहीं था, फीडबैक नहीं था इतना ज़्यादा, जब सेल हो रही है रात को सेल आ जाती, लेकिन अभी तो इंस्टा एंड दूसरी से आपको फीडबैक सर्टन फौरन मिल जाता है कि आप कैसे ड्रेसेस थे, पर्सन मिला कैसा था। टिप क्या देंगी किसी भी खातून को कि वो जो आपको देख रही है वो ये कहे कि मैं भी ऐसा कुछ करना चाहती हूँ अपनी जिंदगी में? माय टिप वुड बी के बी कंसिस्टेंट। लोग बहुत ज़्यादा
हार्ट बहुत ज़्यादा लूज कर देते हैं कि अगर नहीं हो रहा काम बस एक दो दिन में ही थक जाते हैं, दे आर नॉट And there कंसिस्टेंट। are always naysayers. आप कोई भी काम करने लगे आपको बहुत से लोग कहेंगे आप नहीं कर सकते। हाँ, और जो आपने कहा था कि कंफर्ट जोन से नहीं निकलते, तो लेडीज मैंने भी ऐसे भी देखी वो नहीं जाना चाहती, बट बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर आई हैव टू गो टू होलसेल मार्केट्स, फैक्ट्रीज विजिट करनी पड़ती हैं, जाना पड़ता है, ऐसे ऐसे एरियाज में जाना पड़ता है, आप नहीं सोच सकते कि दूसरे लोग जाते होंगे। और आपने ये सब कर दिखाया तभी तो आज आप हमारी इंस्पायरिंग वुमन हैं। बहुत शुक्रिया सायरा, आप थैंक यू सायरा, Thank you for बहुत having अच्छा me. लगा आपसे गपशप करके। आपके डिजाइन्स तो अभी तक अच्छे लगे ही थे, आप खुद बहुत ही अमेजिंग है, शी इज वेरी अमेजिंग, और बहुत अच्छा लगा और आपसे मैं बात करके। आखिर में ये हर इंस्पायरिंग वुमन कहता हूँ कि कीप इंस्पायरिंग अस एंड कीप इंस्पायरिंग द नेशन। सायरा की स्टोरी आपने मुलाहिजा की किस तरीके से इन्होंने, और लाइफ इज ऑल अबाउट सरप्राइजेस। तो आपको जो भी लाइफ में जो भी नया मोड़ आए उसको अच्छे तरीके से जीना चाहिए, और एक बात है कि मेहनत आपको करनी पड़ती है, कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है, तभी कामयाबी आपका मुकद्दर बनती है। और हर सरप्राइज को एक चैलेंज समझ के एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक्सेप्ट करके फिर कंसिस्टेंसी के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, और फिर ही एक टाइम आता है कि जब आप एक्चुअली सक्सेस को अचीव कर लेते हैं।